हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोड से में। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते के वीडियो में ये बताया था कि मैं अगले एपिसोड से आईबीसी जजमेंट्स के बारे में बात करूंगा, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये आज का मेरा वीडियो है। हालांकि ये वीडियो मेरे 2 दिन पहले होने चाहिए थे, जो किसी कारणवश नहीं हो पाए। तो फिलहाल इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे, और बात हम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अगर हम सेक्शन 81 की बात करें, जो आईपीसी में डिफाइन किया गया है, इट्स अ लीगल डिफेंस दैट कैन बी यूज इन द इंडियन पिनल कोड टू जस्टिफाई एन एक्ट दैट वुड अदरवाइज बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। ये सेक्शन 81 का डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का डिफेंस होता है। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, ये एक मतलब कॉन्सेप्ट है जूरिस्प्रूडेंस में, लीगल जूरिस्प्रूडेंस में, जो अगर मैं उसकी स्कीमेटिक की बात करूं कॉन्सेप्ट के, तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इज अ वेल ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट इन द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड हैज बीन कोडिफाइड इनटू आर्टिकल 25 of the International Law Commission draft article on the state responsibility. State have also been essential scrutiny exceptions clauses in their investment agreement. तो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर जो है बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और फोर्स मेजर जो है वो एक ऑन आइडेंटिकल पैरेलल्स पे है, लेकिन इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट सम अंडरलाइंग इवेंट दैट कुड गिव राइज टू बोथ द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी एंड द फोर्स मेजर इन सम पेंडिंग investor state proceeding, including a part of claims brought against the state. Both the defenses are being pleaded alternatively by the respondent state. It bears nothing that while force majeure relates to involuntary or coerced conduct, and necessity usually involves a voluntary act on the part of the state. फोर्स मेजर जो है वो एक्ट ऑफ गॉड होता है, जो प्रिवेंट करता है कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन और एन ऑब्लिगेशन अंडर द contractual obligations under the contract or an agreement. डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ये एक वॉलंटरी एक्ट है जो एक एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज़ किया जा सकता है स्टेट के बिहाफ पे। जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वैलिडिटी डिफेंस के लिए, नेसेसरी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के लिए, द एक्ट covered by the doctrine of necessity must be an exceptional nature in order for this defense to be successful. In assessing a necessity, defense tribunal must examine whether the circumstances meet the requirement laid down by the applicable investment agreement and or customary international law. However, the relationship between the two remains debated. तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को, इसी डॉक्ट्रिन को लेके, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को लेके आईबीसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। जजमेंट जो है वो NCLAT चेन्नई बेंच का है, और जो ये जो जजमेंट है मिस्टर सी शिवास्वामी वर्सेस मिस्टर AR रामसुब्रमण्यम राजा, लिक्विडेटर ऑफ टॉपनिट प्रोसेसिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 IBC 2016 के तहत NCLAT का अपना एक ओपिनियन है कि इट कैन एक्सटेंड द पावर्स अंडर सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 ऑफ IBC and doctrine of necessity concept can be invoked. The concept of doctrine of necessity, which has to be read in accordance with the provisions contained under section 60 subsection 5 of the IBC code 2016, it provides for meting out such inevitable circumstances in form of powers vested with the tribunals, and particularly the NCLT as referred in section 60 subsection 5 of the IBC code 2016 to pass any appropriate order for fruitfully disposing of any application or proceedings in order to meet the purpose of CIRP as against the corporate debtor. When the provisions contained under section 60 subsection 5 of the IBC code, it starts with a non-obstinate clause. That means it has an overriding effect to any of the provisions
to the contrary of the code as contained therein, and that the exercise of inherent powers have been vested with the tribunal to carry out exceptions in order to meet the objective of the code to avoid liquidation and to enable the corporate debtor to transition into position of being going concern. The NCLAT too can extend its power under section 60 subsection 5 to meet out the ends of justice in order to avoid liquidation of the corporate debtor. ये जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये जजमेंट आया है। और ये जो जजमेंट है वो अपने आप में इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो आईबीसी का जो होल पर्पस है, हमारी ये या किसी लिटिगेंट की ये गलत फहमी है अगर वो इस चीज़ को इस तरह से मानता है कि आईबीसी का इन्वोकेशन जो है, जुरिस्डिक्शन जो हम इन्वोक करते हैं आईबीसी का, उसका एंड पर्पस है टू लिक्विडेट द कंपनी। ये जनरल जो कॉन्सेप्ट या बिलीफ बना हुआ है, अगर ये धारणा बनी हुई है तो ये गलत धारणा है। जो कॉन्सेप्ट है आईबीसी का वो ये नहीं है कि एंड ऑफ द डे जो कॉर्पोरेट डेटर है वो लिक्विडेशन में जाए, वो पर्पस नहीं है। पर्पस जो है वो कैसे वो जो कॉर्पोरेट डेटर है वो एज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यू रहे और साथ ही में जो भी जो मतलब ऑब्लिगेशंस है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ड्यूज़, उसको कैसे रिक्रिस्टलाइज करके रिकंस्ट्रक्ट करके उसका भुगतान हो। ये मेरी नज़र में, मेरी अपनी विजडम में ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ना ही कि ये पर्पस नहीं है आईबीसी का कि भाई आईबीसी सेक्शन 7 सेक्शन 9 इन्वोक किया और एडमिट किया और आरपी अपॉइंट हुआ, फिर बाद में आरपी का जो कंक्लूजन हुआ और बाद में चलो एक गोइंग कंसर्न है जो उसे लिक्विडेशन के प्रोसेस में लाया जाए। ये बेसिक उसके बिहाइंड का थॉट प्रोसेस नहीं रहा होगा, जो मेरा अपना विजडम कहता है। एंड ऑफ द डे एक मैकेनिज़्म इवॉल्व किया गया आईबीसी एक्ट के तहत, जिससे कि जो कॉर्पोरेट डेटर है वो एज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यू रहे और इसके साथ में जो भी ऑब्लिगेशंस है, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द ड्यूज और जो भी ऑब्लिगेशंस है वो उसका डिस्चार्ज एक फ्रूटफुल और कंस्ट्रक्टिव मैनर में कैसे सेटिस्फैक्ट्रीली हो और उसके साथ में वो एज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यू रहे। यही मेरे हिसाब से ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेरी समझ में आता है वो है। तो इस लिहाज से सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 आईबीसी का एक अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है और उसी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को यूज़ करते हुए एनसीएलएटी का अपना मानना है कि वो इस पावर को एक्सटेंड कर सकते हैं और टू मीट द एंड ऑफ द जस्टिस। तो ये बेसिक जो जजमेंट है वो ये एनसीएलटी चेन्नई बेंच का है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी विच हैज़ टू बी रेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 जो मैंने पढ़ के बताया। तो ये चेन्नई बेंच का अपना एक जजमेंट और बहुत ही वेल रीजन्ड जजमेंट है और रिसेंट जजमेंट है जुलाई 25 2024 का एनसीएलएटी चेन्नई बेंच का। आप पता ही होगा कि एनसीएलएटी की 2 बेंचें फंक्शन कर रही है इस वक्त, जो है वो एनसीएलएटी दिल्ली और एनसीएलएटी चेन्नई। सदर्न रीजन के लिए जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो एनसीएलएटी चेन्नई बेंच पे जाती है और रेस्ट ऑफ द इंडिया एक्सक्लूडिंग सदर्न इंडिया जो
अपील में चैलेंज होता है NCLT का ऑर्डर, वो NCLAT दिल्ली में जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ये एक कॉन्सेप्ट, और जो कि हालांकि इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, जो IPC में भी एक एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, और द इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के अलावा IPC में इसे यूज़ किया जाता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। और इसी के साथ इस डॉक्ट्रिन को एक्सटेंड किया टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस। NCLAT ने एक IBC जजमेंट, IBC रिलेटेड एक जजमेंट को लेकर। हालांकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की अगर बात करें तो it allows the legal authority to carry out certain activities which are not permitted in the normal course. The term is used to describe the principle of constitutional law which in an emergency or an exigent circumstances the state may legally act, which in other circumstances is deemed to be illegal. The term was first used in 1954 in controversial judgment in Pakistan से related था। The doctrine of necessity was changed to the doctrine of absolute necessity in the case of Election Commission of India versus Dr. Subramaniam Swamy. The doctrine shall be used only in case of absolute necessity. It acts as a defense against violating the law, making the decision valid and not biased. The doctrine of necessity acts as an exception, nemo judex in cause sua, where an authority is disqualified on the grounds of biased decision. तो बेसिक जो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स, कैरेक्टर और उसके ज़रूरी तथ्यों से आपको अवगत कराना था। इसीलिए मैंने इस जजमेंट का जिक्र किया, जिसके तहत NCLAT ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 IBC में उसका उपयोग करते हुए ये जजमेंट पास किया है टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस इन ऑर्डर टू अवॉइड द लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जो कि मूलभूत जो है कॉन्सेप्ट है IBC का, ना कि हर कंपनी को आप लिक्विडेशन में लाओ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है IBC का। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उम्मीद है कि आपको ये आज का जो वीडियो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप सभी को पसंद आया होगा, और फ़िलहाल आज के लिए काफ़ी है। फिर कल मैं मिलूँगा और एक IBC से जुड़े हुए मसले को लेकर और उसके जजमेंट के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ, और आप सभी का दिन अच्छे से जाए। हैव अ नाइस डे एंड कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो।